mass location of the two particle system is clear to all of you? Okay. If any doubt, you can ask me. Yes. So just a quick revision of the formula. That what formula we discussed yesterday. First of all, for the two particle system, the center of mass we wrote like m1r1 plus m2r2 upon m1 plus m2. This was the position vector of the center of mass of the two particle system we discussed. Okay. Now when we extend this for the n particle system, then for n particle system, what is the formula for n particle system? So we can extend this formula for n particle system like RCM for n particle, that is M1R1. This formula can be extended for the n particle system, that is M2R2, that is M3R3, and up to MnRn, and upon M1 plus M2 plus M3 up to Mn. So that also we discussed, and in short form we can write this as summation I equals to 1 to n mi ri and 1 by n को हम बाहर ले लेते थे, लिया था मैंने. So this is the generalized form of center of mass coordinate. The same formula can be written in the sigma form also. ठीक है. We can put we have considered any ith particle arbitrary. If we put the value of I equals to 1, then we can get first term m1r1. Then if we put the value of I2, I की value 2 ले लेंगे, then m1, m2, r2 and so on. So this is the basically center of mass coordinates for the n particle system. These two formula we discussed in yesterday's class. Okay, 17 students are there still only. So this is all about we can say center of mass for the n particle system. Now today we will discuss the coordinate form of the. देखिए आपका जो पोजीशन वेक्टर है, कोई भी पार्टिकल 3D में x एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, y एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है और z एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है. तो उसी प्रकार से उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो उसका सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास को भी हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस द सेंटर ऑफ मास इन कोऑर्डिनेट फॉर्म. ओके. So now coordinates of the center of mass, मतलब अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फॉर्म में. तो देखिए XCM वी कैन राइट लाइक 1 अपॉन m सिग्मा I की वैल्यू 1 mi xi. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. मतलब अपन ने क्या कर दिया, वो जो पोजीशन वेक्टर था उसको x, y और z के में कन्वर्ट कर दिया. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, दैट इज XCM. और we can write x, we can generalize like m1 x2, m1 x1, m2 x2 like mn xn upon the total mass can be written as again m1 plus m2 up to mn. So this is the total mass that we can give in this formula. Okay. Now in the similar y coordinate of the center of mass we can write by x ycm
sigma I when 1 to n. You can write down this formula in your notebook also, and after this I will take the numericals on this formula so that you can better understand this formula. Or we can write m1 y1 plus m2 y2 and mn yn upon we can write mn m1 plus m2 plus m3 and mn. And similarly we can write zcm, that is the z coordinate of the center of mass, that is I is to 1 to power n mi zi, or we can also write like m1 z1 plus m2 z2 plus mn zn upon we can write m1 plus m2 and up to mn. So these are the three coordinates of center of mass that we can write here. I hope that you understood well these three formulas. Any doubt you can ask me. Understood that कि कल हमारा जो जनरल फॉर्मूला था 1 by m in sigma mi ri, where I can be 1 to n, that was the general formula in all the three dimensions. Now we have taken the components, we have taken the coordinates of these three along the three different directions x, y, z, mutually perpendicular directions x, y, z, and accordingly we have written the three coordinates of the center of mass, that is I have represented them like xcm. xcm means the x coordinate of the center of mass, ycm means the y coordinate of the center of mass, and similarly the zcm means z coordinate of the center of mass. So I hope that you have understood well these formulas. Okay, student, let us take some questions on this formula. Let us take some questions on this formula so that you can better understand these things. So we can start with very basic question, very simple direct formula questions से start करेंगे, और फिर हम कुछ अच्छे complicated questions पे भी हम एक दो जाएंगे. टोटल में 3 questions यहाँ पे आपको कराता हूँ, that then you can understand in better way how to calculate the center of mass, and there are variety of the questions are there on the center of mass can be formed. And I will tell you that you should practice from your reference book the variety of the questions. Okay. So after discussing the coordinates of center of mass, let us discuss the question number 1. The question number 1 is there are two bodies 1 kilogram and 2 kilogram are located at 1 2 and -1 3. ठीक है, there are two bodies. एक का मास तो क्या है, मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और दूसरे का मास क्या है 2 किलोग्राम, and these are located at the coordinate 1 2 and -1 3, or you are asked the center of mass of this system. तो ये आपका 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया, दिस इज द 2 पार्टिकल सिस्टम. तो इसके अंदर आपका क्या हो गया, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया m1 पार्टिकल का, ये m1 पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट हो गया. बताइए सबको मैथमेटिक्स में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो अपन इस तरह से जब ब्रेकिंग में 2 नंबर लिखते हैं तो एक x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी ऑलरेडी. एंड नाउ this is the x and y coordinate of the mass m2. So this we can write x1, this we can write y1, this can be write we can write x2, and this we can write y2. I think it is clear. So now nothing we have to do, only we have to find the coordinate xcm, that is m1 x1. मतलब it is very simple question, इसमें कुछ करना ही नहीं है. सेंटर ऑफ मास पे मैंने पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कराया ताकि कई बच्चों को यदि कम भी समझ में आया तो दे कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो. केवल वैल्यूज पुट कर रहे हैं देखो, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं. m2 is 2, एंड बस वैल्यू पुट करते टाइम बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत सावधानी रखनी है. m1 x1, तो m1 x1, m2 x2, एक इधर का x इधर का x, ये ध्यान रखना. अपॉन m1 प्लस m2 3 हो गया, ये हो गया 1 minus 2, that is -1/3. तो एक इसका आंसर आ जाएगा -1/3. Then YCM we can calculate here also, that is m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2, that we can write
Now put the values. M1 into 2 plus M2 is 2 and M3 is 3. Sorry, Y2 is 3 and upon total mass is 3. That is 2 3 is 6 plus 2 8. So total mass, center of mass coordinate in Y direction is 8/3. तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -1/3 8/3. दिस इज द आंसर. ठीक है. आई थिंक इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. यस, कार्तिक श्रीवास्तव हैज given the answer. Tanmay Meena also, very good. So many students actually can solve this question very easily. So okay, we can just now we go to the some different questions. एक दो क्वेश्चन और मैं इसके ऊपर आपको लेके चलता हूं. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर. ठीक है, बॉक्स तो आनी है. यू कैन स्विच ऑफ. There is no glare. The distance between the center of carbon and oxygen atoms in the carbon monoxide. Carbon monoxide है CO. उसके अंदर एक तो आपके कार्बन का मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं. इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है. इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1.13 एंगस्ट्रॉम. यस. Locate the center of mass of the gas molecule relative to carbon molecule. Carbon molecule और carbon atom, sorry, not molecule, atom बोलेंगे. तो कार्बन एटम से कार्बन एटम के रिलेटिवली आपको क्या निकालना है? उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. अब इसको कई तरीके से अपन कर सकते हैं. देयर आर मेनी मेथड्स. एक तरीका तो ये है कि अपन एक तरीका देखो, देयर आर मेनी मेथड्स. एक तरीका तो ये कि जैसे कार्बन एटम की रिलेटिव, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं. कार्बन एटम को क्या मान लेते हैं अपन? ओरिजिन मान लेते हैं. ठीक है. तो कार्बन एटम को अपन ओरिजिन मान लेते हैं. तो कार्बन एटम का मास क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा. और ऑक्सीजन एटम का मास क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा. तो कार्बन एटम का मास क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा. और ऑक्सीजन एटम का मास क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा. अब कार्बन का मास क्या होता है आपका? बेसिकली 6 यूनिट होता है. और ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो 8 यूनिट होता है कि नहीं? मतलब कि जैसे कि अपन एटॉमिक मास उसका लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो बेसिकली आपका, जैसे कार्बन में आपके 6 होता है और ऑक्सीजन, क्योंकि एटम की बात कर रहा है तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे? 8O. ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी. तो इसका मास नंबर आपका हो जाएगा 16, सॉरी नॉट 8. और कार्बन का हो जाएगा 12. ठीक है ना? इस तरह से लिखते हैं ना अपन, याद होगा आपको. 6C12 और 8O 16. तो कार्बन का मास हो गया 12 यूनिट और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16 यूनिट हो गया. आई थिंक क्लियर है. तो इसमें यहाँ पे M1 आपका क्या हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा. और M2 क्या हो जाएगा? 18 यूनिट हो जाएगा. और यदि गैस होती तो फिर उसमें अपन 32 कर देते ऑक्सीजन के लिए. तो या तो अपन इसको, अपन ऑलरेडी इसको ओरिजिन मान लें, तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0. और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा अलोंग, कोई वाई एक्सिस पे कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 1.13 अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन. तो कार्बन के खुद के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2. अब आप यहाँ देख रहे हो y कोऑर्डिनेट तो कुछ है नहीं, तो ycm तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा. मतलब y कोऑर्डिनेट तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग कोई इसमें शिफ्ट कोई पोजीशन है ही नहीं. और वैसे भी आप देख सकते हो कि y1 और y2 यदि 0 है तो जब आप इसको ycm वाले फॉर्मूले में रखोगे तो यू विल गेट द आंसर 0. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का केवल कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? x कोऑर्डिनेट ही होगा. So now we can write xcm equals to, that is m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. Okay. Now कार्बन का मास अपन 12 यूनिट मान लेते हैं और इसका पोजीशन 0 माना अपन ने, प्लस ऑक्सीजन का मास अपन 16 यूनिट मान लेते हैं और इसका 1.13. हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, तो अपन ने एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है.
तन्मय मीना आंसर ला रहे हैं 0.65। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड तन्मय मीना, योर आंसर इज करेक्ट। एंड 12 प्लस 16 m1 प्लस m2। तो हमारे पास एक्सीएम, ये जो एक्सीएम आएगा ना, ये एक्सीएम ऑलरेडी रिलेटिव टू कहां पे आएगा, कार्बन आएगा। ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा ये ऑलरेडी कार्बन के रिलेटिव में आएगा। आई थिंक क्लियर, क्योंकि अपन ने कार्बन को ऑलरेडी सेंटर पे ओरिजिन माना, तो कार्बन से आएगा इसका दिन, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं कहां पे आएगा, कार्बन एटम से आ जाएगा वो। ठीक है, तो कार्बन एटम से वो ऑटोमेटिकली अपन उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दैट इज, ये तो 0 हो गया, तो 16 इंटू 1.13, that is 48, 16 to 20 and 18.08 अपॉन 28, ये एंगस्ट्रॉम में आ गया। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा तकरीबन, ये जो बता रहे हैं तन्मय मीना सही है, 0.65 अप्रोक्सीमेट एंगस्ट्रॉम में। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। और एक तरीका क्या था इसी क्वेश्चन को करने के, देर मैंने टू मेथड्स, या फिर अपन क्या कर लेते हैं, हम सेंटर ऑफ मास को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन पे मान लेते हैं। तो कल अपने केस किया था, सेंटर ऑफ मास को यदि वो ओरिजिन पे मान लेते हैं, तो यहाँ से एक पार्टिकल अपन ले लेते हैं M2 जो कि ऑक्सीजन होता, और यहाँ से एक पार्टिकल ले लेते कार्बन M2 जो कि आपका कार्बन होता, सॉरी M1 जो कि कार्बन होता। ये डिस्टेंस अपन ले लेते R1 और ये डिस्टेंस अपन ले लेते R2। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है कार्बन और ऑक्सीजन की, 1.13। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या रह जाती, 1.13 माइनस R1 रह जाती। भाई टोटल डिस्टेंस आपकी R1 प्लस R2 हो गई, इतनी डिस्टेंस आपकी क्या है R1, तो ये R2 क्या हो जाती है आपकी 1.13 माइनस R1 हो जाती R2 की जगह। तो अपन अब क्या लिख देते हैं, M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2। तो यहाँ पे भी आप वही बात आ जाती है, देखिए 12 इंटू R1 इक्वल्स टू M2 16, और R2 की जगह रख देते 1.13 माइनस R1, और यहाँ से आप R1 निकाल लेते, मतलब सेंटर ऑफ मास कार्बन से रिलेटिवली कितना डिस्टेंस पर है। तो उससे भी हमारा आंसर क्या आता, वही आता जो हमने यहाँ बताया है। तो आप देख सकते हैं 12R1 इक्वल्स टू 16 इंटू 1.13 माइनस 16R1, और ये 16 इधर आके 28R1 हो जाता। देखो एक्चुअली वही चीज आ रही है एकदम, और 16 इंटू 1.13 हमने मल्टीप्लाई किया था अभी 18.08 अपॉन, और R1 की वैल्यू आपकी आ जाती, देखो सेम आ गया ना। तो वही तरीका है, तो इसी मेथड से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो देयर आर टू मेथड्स टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो सेंटर ऑफ मास को पहले ही ओरिजिन पे मान ले, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान ले, फिर M1 X1 प्लस M2, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा कुल मिला के, या फिर सेंटर ऑफ मास को अपन कहाँ ले ले, ओरिजिन पे ले ले, एक डिस्टेंस R1 एक डिस्टेंस R2, डायरेक्ट लगाता है M1 R1 इक्वल टू, क्योंकि अपन ने कल ये प्रूफ किया था ना मैग्नीट्यूड में, यदि सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे माना जाए तो वी कैन राइट M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2। तो आई थिंक बोथ द मेथड्स आर क्लियर टू एवरीबडी। यस, M1L अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज आल्सो, हाँ वही बात हो गई। ठीक है, तो दैट इज, और यही कोऑर्डिनेट आपका मान लो, यही बोलता सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन से कितना डिस्टेंस होगा, तो 1.13 में से जो हमारे 0.65 आया आंसर, इसको माइनस कर देते हैं अपन। चलिए नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि 3 मासेस M1 M2 M3 आर लोकेटेड at the vertices of equilateral triangle of side A, then what will be the coordinates of the center of mass of the system। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप समझते हैं बच्चों आई थिंक, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट अस इट इज ABC। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो क्या दे रखी है उसने, साइड उसकी मान लो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
और ये बोल रहा है कि इसके वर्टेक्सेस पर, यानी इसके जो एबीसी वर्टेक्सेस हैं उस पर 3 मास रखे हुए हैं और तीनों मासेस की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। लेट अस m1 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, m2 इक्वल्स टू 4 किलोग्राम and m3 equals to 6 kilogram. These three masses are kept at the vertices of this equilateral triangle, and the question is that locate the center of mass. Locate the center of mass of this system. ये जो आपका ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिस्टम है जिसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर है और उसके हर एंड्स पे, हर कॉर्नर पे आपके पार्टिकल रखे हुए हैं 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम मास के। वहां पे आपको क्या करना है, बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें भी क्या तरीका होता है कि अपन किसी भी इच्छा से हमारी एक साइड को क्या ले लेते हैं, ओरिजिन पे ले लेते हैं। तो अपन ने मान लिया कि ये हमारा, और ट्रायंगुलर लेमिना आपका 2 डायमेंशन में फैला हुआ होता है। भाई एक ट्रायंगल अपन हमेशा 2D में बनाते हैं, प्लेन में बनता है ट्रायंगल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 3D में थोड़ी ट्रायंगल बनता है, 3D में तो फिर पिरामिड बन जाएगा। तो 2D में ही आपका ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के भी क्या होंगे, 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यानी यहाँ पे हम एक्ससीएम और वाईसीएम की बात करेंगे, जेडसीएम की बात अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। आई होप दैट इट इज क्लियर दैट व्हाट आई एम टेलिंग, कि यहाँ पे अपन एक्ससीएम और वाईसीएम की बात करेंगे, जेडसीएम नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगुलर लेमिना एक 2 डायमेंशनल शेप है। तो यहाँ पे ट्रायंगल आपका प्लेन में होने के कारण बेसिकली अपन यहाँ पे 2D में इसकी बात करते हैं। सो दैट वी कैन राइट हियर। तो अपन यहाँ पे एक m1 पार्टी का कहीं से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। जनरली अपन यहाँ पे m1 ले लेते हैं 2 किलोग्राम और m2 अपन यहाँ ले लेते हैं 3 किलोग्राम, सॉरी 3 लिया मैंने, 4 लिया है यहाँ पे, और m3 अपन ले लेते हैं 6 किलोग्राम। अब आप देखिए तो इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो ये तो m1 के, तो ये क्या क्या कोऑर्डिनेट हो गए, x1 y1, ठीक है। अब आप देखो y एक्सिस पे, अब आप यहाँ पे आ गए तो x एक्सिस पे कितने चलिए 10, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 10, और y एक्सिस पे कुछ भी नहीं चले तो 0, तो ये x2 y2 हो गए। अब आप जब m3 पे जाएंगे तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और y एक्सिस के अलोंग ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सपोज मैं O बोल देता हूं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, आई थिंक ये दिख ही जाएगा आपको। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है y एक्स एक्सिस के अलोंग तो 5 हो गया, और y एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, साइड AO। ये जो AO है ये कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा sin 60, तो AO अपॉन 10, ये हो जाएगा sin 60। sin 60 क्या होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2, sin 60 √3/2 होता है, पता ही होगा आपको। 2 5 10, तो वी कैन राइट AO इक्वल्स टू 5/√3। तो इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5/√3। तो ये हो जाएगा हमारा x3 y3। बताइए कोऑर्डिनेट निकालने आएगी या आपको, बस इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और तन्मय मीना देखो आंसर भी निकाल के ला रहे हैं, बहुत फास्टली तन्मय मीना कर रहे हैं, और बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा फास्ट करना है। लेकिन मैं तो क्या सही बच्चों के हिसाब से करा रहा हूँ, तो मैं तन्मय आप इतना फास्ट नहीं पढ़ा सकता बेटा। ओके, यू आर डूइंग एट योर लेवल, दैट इज वेरी गुड। बट मेरे सामने तो 22 बच्चे इस टाइम बोर्ड पे हैं ऑन द रोल। आई कैन सी द नेम ऑफ 22 स्टूडेंट्स, एंड आई होप दैट ऑल दीज 22 स्टूडेंट्स आर ऑन द क्लास। आजकल ये भी एक सिस्टम चल गया है कि मोबाइल में क्लास ऑन करके और कैमरा और माइक को ऑफ करके और अपने सो जाओ या टीवी जो करना है वो करो। हालांकि आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई ऐसी हरकत नहीं करता होगा, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बोले उधर हमारी क्लास में नाम भी आ रहा है, सर को ऐसा लग रहा है कि हम तो बैठे हैं क्लास में, हम तो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, और अपने आराम से बस सोते रहो, ठीक है। तो आई हैव टेकन योर नेम्स, स्क्रीनशॉट ऑफ योर नेम फॉर अटेंडेंस पर्पस। So don't do such type of things, dear students, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टडी अरेंजमेंट करने में हमको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको तो केवल बस कुछ नहीं करना, घर पे मोबाइल ऑन करके पढ़ाई करनी, लेकिन हमको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं,
जितना सिस्टम हमको यहाँ पे डेवलप करना पड़ा, इवन फिर भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, दैट इज वेरी पैथेटिक। तो ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी, इट शुड बी क्लियर टू एवरीबडी कि हाउ आई फाइंड द कोऑर्डिनेट। बस ये कोऑर्डिनेट आने के बाद तो कुछ करना ही नहीं है, एक्ससीएम और वाईसीएम के फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। दोबारा देख लो, ये 0 0 हो गया, m2 के कोऑर्डिनेट हो गए 10 0 क्योंकि y एक्सिस पर चले ही नहीं, और m3 के कोऑर्डिनेट हो गए, यहां से अपन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो ये डिस्टेंस 5 हो गई एक्स एक्सिस के लॉन्ग m3, और y एक्सिस के लॉन्ग हो गई AO, और AO मैंने निकाला 5√3। so this is I think clear. Okay, so we can now locate the center of mass of this system. So now we can write here XCM, that is m1 x1। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, आई थिंक फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा रहेगा। एंड सिमिलरली YCM आल्सो, तो ओवर m1 is 2 और इसका कोऑर्डिनेट 0, बहुत ध्यान से रखनी होती है वैल्यूज आपको। m2 हमारा 4 और उसका x2 10 और प्लस m3 हमारा कितना था 6 और उसका x कोऑर्डिनेट 5 अपॉन तीनों का सम 2 प्लस 4 प्लस 6, ये तो 0 हो गया, 10 4 जा 40 प्लस 30 अपॉन 12, तो दैट इज 70/12। तो 70/12 को आप लिख सकते हैं 35/6 सेंटीमीटर। तो तन्मय मीना आपने 35/6 ही बोला था क्या? हाँ, तभी वो तन्मय मीना, फिर आप 20/2 ला रहे थे पहले। अच्छा आप ये बता रहे थे, वो आप x3 की आप वो बता रहे होंगे x3y3। ओके ओके, I thought that you are telling the answer. Actually, you were telling the coordinates. Okay. So that is the final. That is the XCM. That is 35/6. दोबारा देख लो, m1 x1, x1 वहाँ 0 है, m1 m2 x2 4 into 10, m3 x3 5 6 into x3. That is, we can say 5. So that is, so that will be 10 4 ja 40, 6 5 ja 30 and 70/12, that is 35/6 centimeter will be the answer. Now we can write, no need to write vector here. Now we can write the YCM coordinate. Now we can write the coordinate YCM, that is okay, x m1 y1 बोले तो 2 into y1 that is 0 plus m2 y2 that is 4 into 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी 0 है, देखो m1 y1 0, m2 y2 0, m3 y3 that is 6 into 5√3 we can write, और अपॉन टोटल मास हमारा 12 चल ही रहा है, तो YCM we can write 0 0 that is 6 5 the 30√3 अपॉन 12, that is that we can कैसे डिवाइड करेंगे इसको, तो 30/12 को आप सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा 6 5/2 आएगा √3, दैट इज 2.5 √3 होता है 1.732, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30/12 को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, देन 5/2 is 2.5, √3 is 1.732, you already know that, you multiply this and you will get the answer, that is 5 √3/2। वेरी गुड, तो एग्जैक्ट आंसर भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आंसर, बेसिकली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, so this is also a type of question that we can solve in the consideration of the center of mass. Okay, I hope that you understood this question. You should understand properly this question. 24 students have come, slightly appreciated strength, but still 11 students are not there, 35 are there, then 35 out of 24 are present out of 35, so still 11 students are just sleeping, or they are just not in mood to study. Okay students, so now let us discuss some theoretical topic also. इसी आगे हम थोड़ा एक दो चीजें और बता देते हैं सेंटर ऑफ मास में। I think the 3 numericals I have told you, explained you have understood that.
आई नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द सिमिलर क्वेश्चंस। अब इसी पैटर्न के जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपको अपने रेफरेंस बुक वगैरह में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, और एनी डाउट यू कैन पोस्ट मी। एक्चुअली नोबडी पोस्ट मी द डाउट फ्रॉम दिस क्लास, इट मीन्स यू डोंट solve the numericals. You can post me your doubts also, students, regarding numericals. Suppose you are solving the numerical, you stuck any numerical in any numerical, then you can post me your doubts also. Definitely I will be feeling very happy to send you the solution. So now we discuss the velocity of the center of mass. COM में लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास को, ये मैंने कल ही बता दिया था। So velocity of the center of mass. So we know that the velocity is the rate of change in position. The position में जो rate of change होता है या differentiation of position with respect to time. So here we are talking about the instantaneous velocity. So rate of change in velocity with respect to time, rate of change in position or displacement, we can say also that rate of change in displacement with respect to time is called as the velocity. Okay. So that velocity we have to calculate here. तो जैसे हम बोलते हैं simple velocity is dr by dt if the position vector of any single particle, if the position vector of the single particle is r, then simply we can write the velocity is dr by dt. Okay. In the same way we can also write that if the center of mass coordinate is already given to you, so if we differentiate this the coordinate of the center of mass like drcm by dt. Suppose coordinate of center of mass हमारा कितना है, that is rcm वेक्टर। तो यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक दिस। तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास VCM। So this velocity of the center of mass we can write here. Now we put the values of RCM। क्या निकाला था अभी अपन ने RCM 1/m I to n mi ri n पार्टिकल सिस्टम के लिए ले लिया अपन ने। ओके, तो ये मैंने क्या रख दिया, वैल्यू रख दी RCM की। ओके, नाउ यू डेफिनेटली ओनली पोजीशन इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम ri। तो ये जो डिफरेंशिएशन ऑपरेशन आएगा, ये जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगेगा, ये किस पे लगेगा, ri पे लगेगा। ठीक है, सो दैट वी कैन राइट VCM इक्वल्स टू 1/m इंटू सिग्मा, that is mi, and we can write d by dt into ri, and this dri by dt that we can write vi। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ith पार्टिकल, रेट ऑफ पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज vi, that we can write velocity of any arbitrary ith particle। कोई भी आर्बिट्रेरी जो ith पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी vi हो गई। देन वी कैन राइट VCM इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन i वैल्यू 1 to n देन mi, और ये हो जाएगा vi लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास वी कैन कैलकुलेट हियर। I hope that you understood it. It is clear to all of you, those who are sincerely attending the class. 24 students out of 35 attended the class today. That is the condition of 50% happiness for me. 50% because still 11 students have not joined the class. That's why I have told the 50% happiness. So that is VCM we can write 1/m. Now we can extend it m1 v1 plus m2 v2। इसको मैं एक्सटेंड फॉर्मूले में लिख सकता हूँ m3 v3 and like that mn mvn। और ये कैपिटल M को अपन यहाँ पे m1 plus m2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस m1 plus m2 plus m3 and up to mn।
So this is the velocity of the center of mass. इस पे न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी. Now in the same way we can calculate the acceleration of the center of mass. Let us find it also. That is also very simple. You can find yourself in your notebook. क्या करेंगे अब एक्सीलरेशन के लिए? वेलोसिटी को फर्दर क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे. वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का. देयर इज नथिंग देयर इन दिस. एक्सीलरेशन of the center of mass. So already we have calculated the VCM of the center of mass, that is 1 by m, I value 1 to n, mi vi. This is the value of a center of mass velocity. Now we again differentiate this center of mass velocity VCM. If we again differentiate this velocity of the center of mass, then we will get the acceleration of the center of mass. Then we can write acceleration, that is ACM, that is d by dt 1 by m. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. अब जो d by dt वाला d by dt जो ऑपरेट होगा वो किस पे होगा? vi पे होगा, because velocity is only changing here. And we can write dvi by dt equals to, we can write ai, that is the acceleration of ith particle. Clear? So we can write acm equals to ओके, मैंने डी बाई डी टी 2 बार लिख दिया तो यहां से हटा देते हैं. अंडरस्टूड है वो. ये डी बाई डी टी यहाँ पे आ गया तो बाहर लिखने की जरूरत नहीं है आपको. ओके, दिस dvi by dt become acceleration of the ith particle, that is ai. So that we can write here a 1 by m sigma 1 I की वैल्यू 1 से n तक mi into ai. So this is the acceleration of the center of mass, that we can further extend it. acm equals to m1 a1 plus m2 a2 and up to mn an upon बाहर से आ रही आवाज, that is m1 plus and up to mn. So student, this is the acceleration of the center of mass. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है सबको. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कल हमने बताई थी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताए. एंड टुडे नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द velocity and acceleration of the center of mass, and some numerical also you have to practice accordingly on this topic. इसके बाद अपन एक तो छोटा सा टॉपिक और यहाँ ले लेते हैं, that is momentum conservation for center of mass. अब देखिए, जैसे अपन एक सिंगल पार्टिकल के लिए बात करते हैं कि भाई कोई सिंगल पार्टिकल है और उस सिंगल पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो सिंगल पार्टिकल पे लगने वाला यदि नेट फोर्स यदि 0 है तो वो सिंगल पार्टिकल यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यानी उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. कब? यदि उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है. तो इसी तरह से अपन एक सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई अपन सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो पूरे सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं कि उस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं, यदि कोई भी सिस्टम है मेकिंग ऑफ n पार्टिकल, मे बी n, मे बी 2, 3, 4, जो भी सिस्टम हमारा है, कितने भी पार्टिकल से मिलकर बना है, तो फॉर दैट सिस्टम इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, व्हाट वी कैन राइट, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, if external force is 0 on any system may be of n particle consisting
then momentum of the center of mass of that system, तो उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है. और वी कैन से आल्सो सेंटर ऑफ मास मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है. देखो अपन क्या लिख सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे फोर्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन एनी सिस्टम दैट इज कैपिटल एफ, उस सिस्टम का टोटल मास इनटू उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन एसीएम. भाई मैंने यही तो बताया था, एक सिंगल पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के लिए अपन उस सिंगल पार्टिकल के एक्सीलरेशन को उस सिंगल पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करते हैं. अपन अब पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं, तो अपन जो भी फोर्स लगा कहाँ मान रहे हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे मान रहे हैं. यही तो मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास का मीनिंग. समझ में आ रही नहीं आ रही बात बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास को अपन क्या मान रहे हैं, ऐसा पॉइंट मान रहे हैं जहां पे अपन उसके पूरे पार्टिकल्स को का मास कंसंट्रेट मान सकते हैं. तो दैट एसीएम इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द, that ACM is the representative point for this whole system. So that ACM is considered as the basically center of mass acceleration. The acceleration of the center of mass is multiplied with total mass of the system, then we can get the total force on the system. But now we say if the external force is 0, then we can write M ACM equals to 0, but mass cannot be 0. दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0. और सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन को अपन ने क्या लिखा था, डी बाई डी टी इंटू वीसीएम, दैट इज 0. तो इसका मतलब हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. और दोनों तरफ यदि अपन मल्टीप्लाई कर दें मास का, तो ये सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हो गया, नहीं हो गया? तो ये हो गया पीसीएम, दैट इज मोमेंटम ऑफ center of mass, that is also constant, that is also, yes, I think now it is clear to everybody. Yes, तो m vcm equals to constant, पहले vcm constant, फिर दोनों तरफ अपने m का मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस. मैं इसको अगली स्टेप में लिख देता हूं. तो ये अगेन एक न्यू कांस्टेंट मिल जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास इज अगेन कांस्टेंट. दिस इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो यदि हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पे, तो सेंटर ऑफ मास हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इसके कुछ एग्जांपल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं बच्चों. और फिर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी यानी जो कंटिन्यूअस बॉडी होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स, जैसे ये हमारी रिजिड बॉडी है डस्टर एक, तो उसका सेंटर ऑफ मास अपन फिर कैसे निकालते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास पर इंटीग्रेशन टेक्निक का भी यूज करते हैं. तो सेंटर ऑफ मास में इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज अपन कैसे करते हैं, दैट विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज टुडेज टाइम इज ओवर. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, acceleration of the center of mass and the numericals of the center of mass. So there is a lot of work for your practice. You do the practice at your level, at your home, in your notebook, and you can send me your solutions also, your practice questions you can send me. Okay, thank you very much for the class. Okay, now I stop the recording first.